Assalamu alaikum. Today we will do theorem 10.1.4 and the theorem statement is if in the correspondence of the two right angle triangles the hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other, then the triangle are congruent. In this theorem, what we will do, we will take a right angle triangle as you can see. So, if in the correspondence of the two right angle triangles, what are the two right angle triangles? The first right angle triangle is ABC and the second right angle triangle is DEF. And one of the side of the one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other. What does it mean? We will discuss one side and one hypotenuse of a right angle triangle. Which side? The AC side and the DF side. In this statement, if in the correspondence of the two right angle triangles, the hypotenuse and one side of the triangle. What is hypotenuse? As you know, the hypotenuse is AC and the side is AB. In other triangle, the hypotenuse is DF and the side is DE. So we will take these two sides in the triangle. Then the triangles are congruent. Then we will say if the hypotenuse of this triangle and the other triangle and the other side, this is AB and the DF, if these two sides are congruent, then the triangles are congruent. So what we will do, we will take the correspondence as we have done in the previous theorems. In triangle ABC is correspondence to triangle DEF. So taking the correspondence of two triangle, what we will do, in triangle ABC correspondence to triangle DEF, angle B is congruent to angle E because as you know, in the theorem statement, the right angle triangle is given. So where is the right angle triangle? Angle B and angle E. Angle B is congruent to angle E. These are the right angles. You can write down in the bracket as well. Otherwise, next is CA is congruent to FD. What is CA? You can see over here. What is C? This is CA or you can see AC. CA is congruent to FD. This is the hypotenuse and the other one is AB is congruent to DE. This is the other side. All these things that we have written under the heading of the given, it is after the statement of if. If in the correspondence of the two right angle triangles, you can see ABC and DEF, these both are the right angle triangle, then the hypotenuse in one side. First we have written over here hypotenuse C is congruent to FD and one side of the triangle. One side that is AB and in the other triangle that is DE are congruent to the hypotenuse of the corresponding side of the other. Then the triangles are congruent. Then the triangles are congruent means you will write it down under the heading of to prove triangle ABC is congruent to triangle DEF. What we will do in the construction, you can see over here. In construction, we will produce EF. This is EF. What does it mean? You will produce EF till M such that EM is congruent to BC. आपने इतना EM बनाना है कि you can say EM is congruent to BC. EM is congruent to BC. Clear? And you join then D with M. And always remember this thing कि whatever you do in the construction, draw with the dotted line. Clear? So again I'll tell you कि what we will do, you will produce EF to EM. ठीक है, you will produce this EF till EM. EM इतना होना चाहिए कि that should be congruent to BC. In mathematics, as you know, congruency जिसका word का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि वो equal होता है. ठीक है, so we will produce this EF to EM and then after this join DM क्योंकि हमें triangle ही चाहिए. ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी के लिए और उसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमें ट्राइंगल ही बनानी है. सो यू कैन सी वी हैव वन अदर ट्राइंगल दैट इज DEM.
Again, I told you every time in the previous three theorems, whatever we will be going to do, we will do with the constructed triangles and the given triangle. So, but as you know, this is the hypotenuse side is congruent to hypotenuse side. In this, we are discussing about the right angle triangle. So, we will be going to start our theorem with the right angle triangle. Clear? अब you can see, अब आप लोग देखेंगे from here कि measurement angle, this is given over here, measurement angle, ठीक है? तो why we are mentioning over here measurement angle DEF and measurement angle DEM. These are the angle on a straight line, and these are the angle on a straight line is always equal to 180 degree, or you can say the sum of the two angles is always equal to 180 degree. These are the supplementary angles. So you can write down the reason in the reason, that is supplementary angles. So starting from the constructed triangle, we will take the constructed triangle. In the construction triangle, what you will do, you will simply take the bigger triangle. Whenever you are going to take this, is in this, whatever the right angles are given, write it down, DEF and DEM. So over here, measurement angle DEF प्लस मेजरमेंट एंगल डी एम इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीज़न लिख दे जी सप्लीमेंट्री एंगल और इस इक्वेशन 1 कह रहे हैं. आगे चलें. नाउ व्हाट वी यू कैन सी डी ई एफ इज़ अ राइट, ये हमें गिवन में पता था कि डी ए एफ इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल. ये आपको पहले ही गिवन से पता था कि एंगल ई जहाँ पे हमने कह दिया था इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. यू कैन सी फ्रॉम हेयर एंगल ई इज़ इक्वल टू 90 डिग्री मेंशन नहीं है, बट राइट एंगल का मतलब यही है कि ये आपके पास 90 डिग्री है. आगे चलें तो हमने इसको इक्वेशन 2 कह दिया. अब हमारे पास क्या है, अगर डी ई एफ आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है, और डी ई एफ और डी ई एम 180 डिग्री हैं, तो डेफिनेटली डी ई एम आपके पास, ये जो आपको नज़र आ रहा है डी ई एम, ये आपके पास 90 डिग्री है. तो हमने कह दिया देयर फॉर मेजरमेंट एंगल, दिस इज स्टैंड फॉर मेजरमेंट एंगल डी ई एम इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर? आफ्टर दिस, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल का कोई थ्योरम है, तो आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल की ही से स्टार्ट करोगे. अब हमने कॉरस्पॉन्डेंस शो करनी है. जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कॉरस्पॉन्डेंस शो करने के लिए आप लोगों को दिस इज़ डी ई एम. अगर मेरे पास ये है जी, ये जो कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल है ये, और ओरिजिनल ट्राइंगल है ये जो अब मैंने दो रेड बनाए हैं, पहले मैं इनकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करूँगी. इनकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन में, हम उनको यूटिलाइज़ करके हम, और जो हमने कंस्ट्रक्शन से किया है हम उसको यूटिलाइज़ करके इनकी कॉन्ग्रुएंसी शो कर देते हैं. अब आप देख सकते हैं कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हेयर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एम. तो what are the sides? First of all, you know BC. Where is BC? This BC and this EM. This is congruent because you knew this thing that we have already written in the construction, that BC is congruent to EM. तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में भी लिखा था. यू कैन सी इन द कंस्ट्रक्शन. और ये देखें, ये मैंने लिखने के बाद इसकी रीज़न लिख दी है कंस्ट्रक्शन. क्लियर? इसके बाद आगे चलें. एक साइड हमारी डिस्कस होगी. आगे हम चलेंगे एंगल ए बी सी. एंगल ए बी सी इज दिस इज एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एम. सॉरी, दिस वन डी ई एम दूसरी तरफ है. 1 सेकेंड. ये डी ई एम, क्योंकि हमने ये वाली ट्राइंगल को सपोज करके कर रहे हैं. So triangle ABC is congruent to DEM. When these two triangles angles are congruent, so what is this? We have written over here triangle ABC is congruent to triangle DEM. और रीज़न लिख देंगे कि each angle equal to 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल आपके पास किसके इक्वल है, 90 डिग्री के हैं, जो हमने पहले बताए भी हुए हैं. आगे चलें. अब हमारे पास एक ही चीज़ बच जाती है, डैट इज़ एक साइड अब हमने और लेनी है, या एक एंगल हम और ले सकते थे, अब पर हमने एक और साइड ले ली है. अब साइड लेने के लिए दिस इज़ ए बी एंड द अदर इज़ ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ई. एंड वाई ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ई? यू कैन सी इट इज़ ऑल्सो इन द गिवन. तो रीज़न इसकी मैंने लिख दिया यहाँ पे गिवन.
तो जब आपके पास तीन चीज़ें अगर आप इसको प्रूव कर देते हैं, तीन चीज़ों का मतलब ये है कि कोई से दो एंगल या एक साइड या दो साइड और एक एंगल ले लें, तो आप कह देते हैं कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब आप देखेंगे कि दिस इज़ द साइड, दिस इज़ द एंगल एंड दिस इज़ द साइड। तो आप बताएंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एम साइड एंगल साइड पोस्टुरेट, ठीक है। या आप कहेंगे कि साइड एंगल साइड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, ये भी लिख सकते हैं आप। तो आपके पास ये जो दो ट्राइंगल्स जो मैंने आपको पहले शो करवाई थी, ये वाली, ये आपके पास एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। अब ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आपने एक चीज़ में स्टार्ट करनी है, वो क्या करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो आपने हमेशा हमें पता है कि जब हम कॉन्ग्रुएंसी करते हैं तो हम कहते हैं हेंस और देयरफॉर एंड सो। तो इधर हमने लिखा है एंड। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो व्हाट डज इट मीन कि एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम। अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके सारे एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसकी सारी साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने ले लिया जी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो वाला एंगल जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, एंगल सी और एंगल एम। अब इसकी रीज़न क्या है कि क्यों हम एंगल सी और एंगल एम को ले रहे हैं। अभी हम शो तो कर रहे हैं कि एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एम के, रीज़न लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। इसी तरह ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इस कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के, ठीक है, ये वाले एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसी तरह जो साइड रह गई है पहले हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि सी ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी एम के। ये अब हमारे पास पता है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका हर एंगल और हर साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, एवरी एंगल नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग, कि लाइक ए सी इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू डी एम, ठीक है, और सी इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू एम डी, जैसे मर्जी आप इसको लिख दें। अब मैंने कह दिया कि सी ए इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू एम डी, तो हमारे पास एक गिवन में चीज़ थी मेंशन, वो क्या थी, सी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी। तो सी ए अगर एम डी के कॉन्ग्रुएंट है और सी ए अगर एफ डी के भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों से प्रूफ क्या निकलता है कि मैं सी ए को निकाल दूँ तो एम डी एफ डी के कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ईच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी ए, ठीक है, जिसको मैंने कैंसिल किया वो रीज़न में लिख दिया कि ईच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी ए। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट हम करेंगे कि हमने लेना है इन ट्राइंगल डी एम एफ। मैं अब आपके सामने ये पूरी ट्राइंगल बना रही हूँ, ठीक है। अगर मैं कह देती हूँ इन ट्राइंगल डी एम एफ, ये डी है, ये एम है और ये एफ है, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपके पास सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, कि अगर मैं ये वाली ट्राइंगल ले लेती हूँ और हमने बता दिया कि एम और आपके पास एफ कॉन्ग्रुएंट है, कैसे, अगर डी एम और डी एफ कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसे कि अभी हमने ये ऊपर प्रूफ किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वही वाली साइड बात आ गई कि जब दो एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो इसके दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैंने लिख दिया कि एंगल एफ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम, और रीज़न इसकी किस वजह से लिखी है, ये क्यों है कि अभी आपको बताया था कि एम डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ और एफ डी, एम डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एम डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी, और रीज़न ये हमने बताया कि ये प्रूव्ड है। अगर एफ और एम एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो आपको पता है सी और एम भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सी और एम हमने पहले ही जैसे भी कॉन्ग्रुएंसी अगर आप ऊपर देखें तो मैंने यहाँ पे शो करके बताया था कि सी और एम भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स थी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स थी, तो सी और एम भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दोबारा से हमने लिख दिया एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम, जो ऊपर भी हमने यूज़ किया था, ठीक है। ये अब आपने लिख देना आगे कि दिस इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड, क्योंकि ये जहाँ मैंने स्टार बनाया ये प्रूव्ड है, क्लियर। आगे चलें, एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, हाउ, बिकॉज अगर आप देखें एंगल सी और एंगल एफ, अब ये इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों जी एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ है, क्योंकि अगर आप देखें ये वही वाली बात होगी, एम एम को कैंसिल कर दें और रीज़न क्या लिखेंगे, जिसको कैंसिल करते हैं वो उठा के यहाँ आप लिख देते हैं कि ईच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम। जब ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पीछे आपके पास क्या रह जाता है, अब आपने शो कर दिया, अब आपके पास आ गया है सी और एफ कॉन्ग्रुएंट है। अब आपने ट्राइंगल कौन सी लेनी है, क्योंकि किसी भी कॉरस्पॉन्डेंस को शो करने के लिए हमारे पास कोई एक एंगल कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी होता है। तो अब ये सारी चीज़ें अगर मैं इसको रब कर दूँ तो अब आपको ये देखें, जो भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं, लाइक अब हमने कॉरस्पॉन्डेंस शो क्या करनी है, किसकी शो करनी है, किसकी, वो मैंने ये शो करनी है कि ए बी सी को आप कॉन्ग्रुएंट उठा के डी ई एफ के प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट।
तो ए बी सी को अगर प्रूव करूँगी तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, व्हाट वी विल टेक, ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी। ठीक है, ये हमें प्रूव्ड है, क्योंकि अगर आप देखें ए बी डी ई के कॉन्ग्रुएंट है, तो आप ये देख लें ये गिवन में भी था और ये मैं इधर स्टार बना रही हूँ, ये ऑलरेडी था, तो हम इसके आगे रीज़न लिख देते हैं, गिवन लिख देते हैं कि ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट है डी ई के, कि हमें पता था कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब हमें पता है कि आपके पास एक एंगल आपके पास है जो डी ई एफ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी। ठीक है, दिस इज़ अगेन इन गिवन कि बी एंगल और ई एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये भी गिवन में था, आप गिवन आगे लिख दें। पीछे आपके पास क्या रह गया, पीछे आपके पास क्या रह गया जी, एफ और सी अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं। एंगल एफ एंड एंगल सी, ये जिसको मैं अब बना रही हूँ, एंगल सी और एंगल एफ एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये अभी हमने प्रूव किया है। अगर आप देखें एंगल सी और एंगल एफ एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये अभी मैंने स्टार बना दी है, तो दिस इज़ एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। और अब आपके पास तीन चीज़ें हो गई हैं, कौन कौन सी हुई हैं, मैं यहाँ पे इसको अब ग्रीन कलर से मेंशन कर देती हूँ। दिस इज़, हमने ये वाली साइड ली, दिस वन सेकेंड, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है, इट वाज इन द गिवन। ठीक है, फिर हमारे पास क्या चीज़ गिवन में मौजूद थी कि एंगल आपके पास, ये वाला एंगल जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये यानी कि साइड की बात होगी, एंगल की बात होगी, और फिर हमारे पास क्या है, तीसरा हमने प्रूफ खुद किया है कि एंगल सी और एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट है। तो साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट से, ठीक है, या एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट से हमने प्रूफ कर दिया कि जो आपने प्रूफ करना था कि आपके पास ट्राइंगल, वन सेकेंड, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। सो इट इज़ द वेरी सिंपलेस्ट थिंग। आप लोग सिंपली क्या करेंगे, ये इसको हमने प्रूफ करना था, कौन कौन सी चीज़ें हमने यूज़ करके की हैं ये आप देख सकते हैं। और स्टिल अगर कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, बट वेरी इजी थ्योरम when you are going to take the things side by side। for example quickly recap कर देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स लेंगे, ऑफ कोर्स जो कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। फिर बाद में आप उसको प्रूफ करने के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि आपने करना क्या होता है, राइट एंगल से, यहाँ पे राइट एंगल है तो मेंशन कर दे राइट एंगल शो कर रहे हैं, फिर कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल और जो सेपरेट ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी कॉन्ग्रुएंसी लेते हैं और उसको शो करते हैं। ये दो एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के, तो फिर हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट उसमें हमने अब इस थ्योरम में हमने क्या किया, इस बिगर ट्राइंगल को लेके इसका ये वाला एंगल और ये प्रूफ किया इक्वल, जो आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल इसकी कॉन्ग्रुएंसी ली हमने, ए बी सी और डी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमने दो गिवन चीज़ें ली और एक हमने जो प्रूफ किया हमने वो लिया और हमने इसको शो कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है। तो ईजीएस्ट थ्योरम खुद से करेंगे, जितनी ज़्यादा सोचेंगे लॉजिक्स यूज़ करके करेंगे तो यू विल नॉट be going to confuse and you will be at ease when you are going to do the theorems। okay ji boys, I think it should be clear to you। अगर नहीं है तो you can ask me again, then I will be going to explain it again। okay ji, thank you ji boys, Allah Hafiz।